The basic substance, the cell, contains cytoplasm, which has about 90% water. In the world, has approximately 50 to 90% water. Imagine, in the deserts of Arabia, who could have imagined that everything is made of water? Exact answer you can refer to my video cassette, Qur'an and Modern Science. Darwin's theory is not a fact at all. If you were present at Darwin's time, Darwin's theory would have been proved right, insinuating he looks like an ape. There are missing links to Darwin's theory. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, मॉडर्न साइंस की अक्सर थ्योरीज ऐसी हैं जो इस्लाम की नफी करती हैं। मालूम नहीं कि ऐसा जानबूझकर किया जा रहा है कि इस्लाम के उसूलों से मुसलमानों को ही मुनहरिफ कर दिया जाए, या फिर इन थ्योरीज को पढ़ाने वाले ऐसे बेवकूफ हैं जो बगैर किसी शवाहिद के और समझ से बालातर इन थ्योरीज को बच्चों की किताबों में छाप रहे हैं। मगर तालिब इल्म जब ऐसी कोई भी चीज पढ़ते और सीखते हैं तो एक तरह से वो इस्लाम के बुनियादी उसूलों को ही मुस्तरद कर रहे होते हैं। इसी चीज से परेशान एक लड़का डॉक्टर जाकिर नाइक के पास भी आया। उसने बताया कि मेरा नाम असलम है और मैं मुसलमान हूँ, मैं बायोलॉजी का तालिब इल्म हूँ और मेरे स्कूल में टीचर्स आजकल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पढ़ा रहे हैं। इस्लाम इससे बिल्कुल अलग चीज कहता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि साइंस और इस्लाम में एवोल्यूशन थ्योरी से मुताल्लिक क्या लिखा है? Assalamu alaikum. My name is Aslam Rauf and I'm a student studying biology right now, and my teacher is teaching me evolution now, and I was wondering about the Islamic answer to evolution right now, if you could explain briefly what Islam says on the topic of evolution and creationism. नाज़रीन, इससे पहले कि हम आपको इस सवाल के जवाब सुनाएं, आपको बताएं कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन क्या है। नाज़रीन, इस नजरिए को एक ईसाई डार्विन ने पेश किया, जिसने कहा कि इंसान पहले बंदर थे, फिर ये रफ्ता रफ्ता इंसानों की शक्ल में आए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल के जवाब देते हुए बताया कि यह सरासर गलत चीज है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन झूठ के सिवा कुछ नहीं। अपने एक दोस्त के नाम खत में मारूफ माहिर हयातियात चार्ल्स डार्विन ने जिंदगी के आगाज का नुक्ता नजर पेश किया। डार्विन के मुताबिक वो एक बहरी सफर पर जा रहा था जब उसने एक परिंदे को अपनी चोंच मारते देखा। इसने देखा कि परिंदे की चोंच लंबी, नोकदार और तेज है। उसने नेचुरल सिलेक्शन का नजरिया पेश किया और इसने अपने खत में ये माना कि मेरे पास ये साबित करने का कोई तरीका नहीं, मगर ये थ्योरी चूंकि मुझे मुतमईन करती है, इसलिए मुझे लगता है कि नेचुरल सिलेक्शन का तरीका ही दुरुस्त है। Exact answer you can refer to my video cassette, Qur'an and Modern Science. Regarding when talk about evolution, you start thinking about Darwin's theory. And Darwin went on a ship, HMS Bugle, to island by the name of Calotropis, and he saw birds pecking at niches. Based on that observation that the beaks of the bird became long and short, he propounded the natural selection. But he wrote a letter to his friend Thomas Thompson in 19th century. He said that I do not have proof to propound my natural selection, but because it helps me in classification of embryology, of rudimentary organs, I have put forth this. Darwin's theory is not a fact at all. It is only a theory. And I made it very clear in the beginning of my talk. Quran can go against theories, because theories take U-turns, but Quran will not go against any established fact. And in a school, we are taught about Darwin's theory as though it's a fact. It's not a fact. There is no scientific proof at all. There are missing links. Therefore, if someone has to insult his friend, his colleague, he will say, if you were present at Darwin's time, Darwin's theory would have been proved right, insinuating he looks like an ape. There are missing links to Darwin's theory. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि सिर्फ वो मखलूक बाकी रहती है जो माहौल में एक बेहतर अंदाज में ढल सके, जबकि कामयाब जानवर अपनी खुसूसियात अपने बच्चों में मुंतकिल करते हैं ताकि इर्तकाई अमल जारी रहे। मगर थ्योरी एक हकीकत नहीं हो सकती। और मैंने अपने लेक्चर के आगाज में ही कहा था कि कुरान थ्योरी को साबित नहीं करता। कुरान की लिखी बातें साइंसी हकायक साबित करते हैं जो साबित हो चुके होते हैं, और कुरान पाक किसी भी एस्टेब्लिश्ड फैक्ट के खिलाफ नहीं है। स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि डार्विन का नजरिया एक हकीकत है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। इस चीज का कोई भी साइंसी सबूत मौजूद नहीं है। हमने जब भी किसी दोस्त का मजाक उड़ाना होता है तो इससे कहते हैं कि अगर तुम डार्विन के टाइम में होते तो डार्विन की थ्योरी सही साबित होती। यानी कि हम इस दोस्त से ये कहते हैं कि तुम्हारी शक्ल बंदर जैसी है। एक अंग्रेज साइंसदान हेनिस क्रेक ने कहा था कि ऐसा हो नहीं सकता कि इंसान बंदरों से इंसान बने हों। डीएनए ऐसी किसी चीज को साबित नहीं करता। बायोलॉजी के कुछ हिस्से हैं जिन्हें कुरान पाक बयान करता है, जैसे कि सूरह अंबिया में लिखा है कि क्या मुनकरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन
जमीन जुड़े हुए थे, फिर हमने उन्हें जुदा जुदा कर दिया और हमने हर जानदार चीज को पानी से बनाया। क्या फिर भी यकीन नहीं करते? आज साइंस इस बात की तस्दीक करती है कि हर जानदार चीज पानी से बनी है। जरा सोचे कि अगर कुरान पाक सच्चा न होता और रब की तरफ से न होता तो कौन अरब के सहराओं में 1400 साल पहले ये आयत बताता कि हर जानदार चीज पानी से पैदा हुई है, और ये चीज 1400 साल तक साइंस साबित नहीं कर सकी। ये हाल ही में साबित हुई है। I know about the four fossils that are present, the hominoids, the Lucy, Australopithecus, with its guide, the Homo erectus, Neanderthal man, Cro-Magnon. For details, refer to my video cassette. By molecular biology, according to Francis Crick, he said it is impossible that we can be evolved from apes by DNA coding. It's impossible. You can refer to my video cassette. It gives the detail. Some parts I've got no objection regarding biology. Quran says in Surah Anbiya chapter 21 verse number 30 that وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ है أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. We have created every living thing from water. Will you not then believe? Today we know that every living creature, the basic substance, the cell, contains cytoplasm, which has about 90% water. Every living creature in the world has approximately 50 to 90% water. Imagine, in the deserts of Arabia, who could have imagined that everything is made of water? Quran says that 1400 years ago. डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात का इख्तिताम करते हुए बताया कि डार्विन की थ्योरी इसलिए कामयाब है कि आज साइंसदानों के पास इसका कोई मुतबादिल नहीं है, इसलिए साइंसदान इसी थ्योरी को लेकर चल रहे हैं। हालांकि ऐसे ऐसे शवाहिद आ चुके जिनको डार्विन को बिल्कुल भी इल्म नहीं था। थोड़ी सी अक्ल इस्तेमाल करके इस बात को आसानी से समझा जा सकता है कि थ्योरी सरासर बेबुनियाद है। अगर पहले के इंसान बंदरों से इंसानों की शक्ल में आ गए तो फिर आज के बंदर क्यों बंदर ही रह गए? वो क्यों एवोल्यूशन में नहीं आ रहे? और क्यों इंसान अपने मौजूदा जिस्म से किसी और में मुंतकिल नहीं हुए? क्यों हर जानवर की शक्ल वही है जैसी सदियों पहले थी? डॉक्टर साहब ने इस तालिब इल्म से कहा कि उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ गए होंगे, मगर इम्तिहान पास करने के लिए जरूरी है कि आप दुनिया का इल्म भी हासिल करें। तो इसको भी पढ़ लें, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आपको हकीकत मालूम है कि इंसान शुरू से ही इंसान है और बंदर शुरू से ही बंदर। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर पहुंचती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। A text and translation cannot be exactly the same, can come close to it. And according to Maulana Abdul Majid Daryabadi, he said the most difficult book in the world to translate is the glorious Quran, because the language of the Quran is so eloquent, it is so superior, so noble, and one word in Arabic has got several meanings. Therefore, to translate the Quran is the most difficult. It is not the same. And if there's a mistake in the translation, it is a human handiwork. The human being who's translating, he's to blame, not Almighty God. Regarding, was Bible revealed in English? No. Bible wasn't revealed in English. It's Old Testament in Hebrew, New Testament in Greek. Though Jesus Christ, peace be upon him, spoke Hebrew, but the original manuscript that you have, it's in Greek. The Old Testament, the original Hebrew is not available. Do you know that? The Hebrew translation of the Old Testament is from the Greek. So even the original Old Testament, which is in Hebrew, is not present in Hebrew.